Welcome to you all. Today we'll be solving calculus for year 2020. So let's go ahead. So the first question is limits निकालना है हमें of the form 1 to infinite. So this type of problem we have already done this. That's why I'm not doing not doing the question repeatedly. But what I have done is I've just given you the final solution और आंसर क्या आता है बेसिकली फाइनल सॉल्यूशन क्या है और सॉर्ट और मतलब स्टेप्स क्या है. यू कैन वॉच इट बाय पॉजिंग द वीडियो एंड हैव अ लुक एट इट. बट जस्ट मेन स्टेप इज देयर लाइक यू हैव टू टेक लॉग एंड इट विल बी समथिंग लाइक 0/0 फॉर्म बन जाएगा. एंड यू नो what we do in L'Hopital rule. We differentiate numerator and denominator. So बस सेम प्रोसेस करना है एंड द मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज देयर. आई होप सिंस यू हैव टेकन मैथमेटिक्स ऑप्शनल तो मतलब कैलकुलेशन से डर नहीं लगना चाहिए. तो देयर इज नथिंग न्यू कॉन्सेप्ट हियर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो आई एम जस्ट लिविंग टू यू टू डू ऑन योर ओन and see what the answer comes up to you. So calculation is something which you should be well versed. Like गलतियाँ हो सकती हैं कि like you may do calculation error. It's happens with everyone. So but you have to be kind of rechecking the answers that you have got. You need to be careful while doing those calculations which are more prone to calculation errors. To try to avoid those things and try to be careful at those junctions. So this is an easy question, you can do easy. So let's go to the second question. And I'm just making you see the things that like where I have done this question. So you see this वाला example. तो इसमें भी sort of ऐसा ही कुछ बन रहा था. L'Hopital का ही एप्लीकेशन मतलब लॉगरिथमिक का ही एप्लीकेशन था. तो यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ 2022 वाला एंड सी हाउ वी डू दिस. नथिंग न्यू. आई एम प्रीटी श्योर you will all be able to do this. Even you have done this such kind of problem in 12th also. So the asymptotes we have to find out. Asymptotes, though we have done some kind of graph work previously का मतलब है कि मतलब 2023 हम पीछे से सॉल्व कर रहे हैं. 2023-2022 तो हमने 2023-2022 के ईयर्स में सॉल्व किए हैं. वी आर जस्ट मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो यू माइट हैव सीन कि हमने कैसे वहाँ पे हमने डिस्कस किया था. दो अनदर क्वेश्चन केम कि एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड कि हमें एसिम्प्टोट निकालना है. But we can find out the methods that I had discussed there, but I will be doing this such kind of problem. So the one simple solution would be like just expand the form and follow the procedure, standard procedure. So how we do this? So 2x y 3x 3y x minus 1 minus 2x plus 2x. This is 0. Say this is this is f of xy. ठीक है. So now what we do here, what we follow the standard procedure to find out asymptote. Like we put y is equals to m, x is equals to 1. So if you see this, the highest degree is 2. And also the degree of xy is 2. So what we do here, the phi of 2 degree 2 in m is nothing but you put y की जगह पे m and x की जगह पे 1 and it will become something like this 2m minus फिर y जो x जो भी सेकेंड ऑर्डर वाले टर्म है दिस वाला टर्म तो उसमें भी डाल दो. अगेन यू पुट वन वाला ऑर्डर 1 का टर्म m के फंक्शन में. तो इफ यू सी हियर this is only y term here 3m and this is 2. I hope you got it. So what we can do from here, if we equate to 0 we will be getting m कि m के कितने सारे values हैं. तो
So from here we get this m की हाफ वैल्यू, एक ही वैल्यू है इस मेथड से. नाउ अब चूंकि हमें एसिम्प्टोट निकालना है, एसिम्प्टोट वुड बी नथिंग बट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी काइंड ऑफ फॉर्मेट. तो m वी गॉट की हाफ आएगा. c व्हाट वी डू हियर, थियरी में आपने पढ़ा होगा, लाइक व्हाट वी डू हियर, phi n minus 1 m phi dash n m. So this is the theme that we apply for CI. yes, तो मतलब अब C तो एक ही है, M तो एक ही है, तो C1 ही डालो, माइनस n is हाइस्ट ऑर्डर, तो n is 2, तो 2 इसका डिफरेंशिएशन 2 ही हो जाएगा. इफ़ यू लुक अप दिस, तो इसका क्या आएगा, 3m प्लस 2. यहाँ से क्या हो गया, अगर हम c की जगह पे हम लोग m का वैल्यू डाल दिए, c का जगह पे c की इक्वेशन में m वाली वैल्यू डाल दिए, तो इट विल कम आउट टू बी 3 तो 5 बटे 4, सॉरी 4 3 7 बटे 4 और माइनस बाहर वाला, तो इट विल बिकम देयरफॉर y is equals to mx plus c. mx plus c is an asymptote. asymptote स्पेलिंग सही है, asymptotes of function f of x y. अगेन लाइक इसके अलावा भी बहुत सारे वो होते हैं, इसके अलावा भी कुछ asymptotes होते हैं. तो लाइक इफ यू सी हियर द हाईएस्ट ऑर्डर इज 2, तो x हाईएस्ट ऑर्डर इज 2, तो the highest coefficient of highest power of x and y, the coefficient of highest power of x and y, वो भी asymptotes होते हैं which is parallel to axis, gives asymptotes parallel to axis, asymptotes parallel to axis. So parallel to y-axis would be highest power of y to be 0. अब यहाँ से अपन देखिए तो हाईएस्ट पावर y का 1 है, y की पावर 1, इसका कोफिशिएंट 2 की पावर पैरेलल टू y एक्सिस and highest power of y is 0. This means that 2x plus 3 equals to 0. This means that 2x plus 3, yes, तो x is equals to minus 3 by 2. तो मतलब ये हुआ कि मतलब एक x है, ये हाफ, ये 1 है, ये 3 minus 3 by 2 पे ये minus 3 by 2 है, ये पैरेलल टू y एक्सिस एक एसिम्प्टोट होगी. अब दिख भी रहा है, लाइक इसको आप डिनोमिनेटर में लेके आओ समथिंग लाइक दिस, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 3, तो ये कुल मिला के ये नहीं हो सकता, बिकॉज यू नो इफ यू पुट x इक्वल्स टू माइनस 3 by 2, वो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा, तो वो वाला एसिम्प्टोट इसको जो भी वैल्यू होगी इसके अलॉन्ग जा रही होगी, इन इसके आसपास वो y नेगेटिव पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा होगा, प्लस माइनस हमें देखना पड़ेगा विच वी कैन सी इजिली. तो x की ये भी एक इक्वेशन हो गया एसिम्प्टोट. तो कुल मिलाकर 2 एसिम्प्टोट थे विच वी हैव ऑलरेडी फाइंड. तो मुश्किल नहीं था, स्टेप्स फॉलो करने थे. सो अगेन इसको देख के क्या थॉट प्रोसेस आता है, लाइक वी हैव टू एवेल्युएट दिस स्टेप. लाइक इसको देख के हमारे मन में लाइक द थॉट शुड कम टू आवर माइंड कि मतलब कुछ चीज़ें अनडिफाइंड हो रही है. अगर हम 0 अगर डालें यहाँ पे तो इनफाइनाइट को जा रहा है. And also something that comes to our mind is that चूँकि tan inverse infinite pi by 2 हो जाएगा. ओके, तो one thing I want to note to bring into your notice,
क्या हो गया? यहाँ पे देखोगे सेम ऐसा ही कुछ है। अगर हम इस पे जीरो डालते हैं तो वो इनफाइनाइट जा रहा है। ये एफ एफ एक्स डिफाइंड ही नहीं है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट सॉरी, ये ऐसा होगा आर टू जी आर पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी गलत होगी थोड़ा सा। तो ये इनफाइनाइट हो जा रहा है, इस पर डिफाइन ही नहीं हो रहा है फंक्शन। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो फंक्शन डिफाइंड है, पाई tan इनवर्स एक्स डिफाइंड है। तो अपन यहाँ पे ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि लाइक यू नो कि जीरो पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है। ये होगा tan इनवर्स एक्स, आपका ग्राफ tan इनवर्स एक्स का ग्राफ में पता है कैसे है। वो पाई बाई टू पे tan पाई बाई टू बेसिकली tan pi by 2 infinite, तो tan inverse infinite is equals to pi by 2, so it is defined. So 0 is not a point of infinite discontinuity, we have to note it here. So अब ये हमारे पास नहीं रहा, मतलब एक हमारे पास वो मेथड कन्वर्जेंस वाला मेथड हम नहीं जा सकते उससे। उसमें क्या करते हैं कि अल्फ़ा ले लो, 1 ले लो, लिमिट लगा लो, टेंडिंग टू 0 जाएगा, ऐसा कुछ करके हम करते हैं। थियरी में आपने पढ़ा होगा। तो वी डू नॉट हैव टू थिंक अलॉन्ग दोज लाइन। सब सही है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वन थिंग दैट विल कम टू योर माइंड इज दैट इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ भी आ सकते हैं, लाइक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, इसको जनरल लिखता हूँ, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अगर हम ये लगाएं तो लेट्स से इसको कॉल इट आई, 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डी एक्स। ये हमें देखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो यू नीड टू हैव मोर प्रैक्टिस, यू नीड टू डू मोर प्रैक्टिस। तो इसको क्या करा कि x को a प्लस बी माइनस एक्स, अब क्या करा कि 1 माइनस एक्स रख दिया इसे, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डी एक्स। इसको थोड़ा सा अच्छे से सजा लेते हैं, ये सब हटा देते हैं। tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपन एक्स डी एक्स 0 से 1। अब इसको करें तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ठीक है, 0 से 1 तक इंटीग्रेशन। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो ये वाला तो गया भाई, तो 2 ऑफ आई वुड बिकम 0 से 1 तक ये tan इनवर्स माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस, तो ये लिमिट सेम है तो फिर रहने देते हैं ऐसे ही, tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस 1 एक्स का होल डी एक्स। अब चूँकि इसको यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं तो कुल मिला के ये रेसिप्रोकली बन गया, tan इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस 1। तो ये ए बोला तो ये 1 अपन ए है। अब प्रॉपर्टीज़ होती हैं tan इनवर्स की, आई विल रिकमेंड यू टू गो थ्रू प्रैक्टिस, मतलब गो थ्रू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ
इनवर्स, क्योंकि हमने 12th में पढ़ा होता है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं रहता, तो यू मस्ट हैव अ लुक अपॉन दोज, जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू कि क्या कैसे चल रहे होते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस π/2। जब x पॉजिटिव हुआ तो x नेगेटिव हुआ तो x पॉजिटिव हुआ तो x नेगेटिव हुआ तो ये डेफिनेशन। तो अब पता लगाना है कि क्या है, क्योंकि ये देखिए 1x का लिमिट्स है 0 से 1 तक, तो x 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये वाला तो मतलब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि x तो 0 से 1 तक है बट वो 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहा है, तो ये नेगेटिव, तो वो कुल मिला के ये वाला केस लग रहा है अपन को। तो 2i इज इक्वल्स टू माइनस π/2, i इज इक्वल्स टू माइनस π/4। दिस वुड बी द आंसर। थोड़ा सा लिख लेते हैं, दिस वुड बी द आंसर। आई होप यू गॉट इट, क्योंकि मतलब ये डायरेक्ट मैंने लिखा कि ये जो होगा x माइनस 1/x ये लेस देन 0 होगा, बिकॉज सिंस चूँकि सिंस x 1 से लेके 0 तक है, 0 से लेके 1 तक है, सॉरी। तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं। दैट्स वाई, ठीक है, अब ये डन हो गया। सो दूसरे क्वेश्चन बात है, ये भी मतलब देखना चाहिए था कि मतलब अगर कुछ लोग इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करने का ख्याल हो सकता था, होगा तो उससे भी, बट इट विल बिकम क्वाइट लेंदी। तो मतलब एग्ज़ाम में अप्रोच क्या लेते हैं अपन, गाड़ी किस डायरेक्शन में अपन गाड़ी लेके निकलते हैं, विल वेरी मच डिटरमाइन कि हमारा पाथ कैसा होगा। हम ज़्यादा बम्पी रोड पे निकल रहे हैं तो वी विल हैव टू बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगे। कुछ रोड ऐसे भी होंगे जो कि ए से बी तक ही जाएगा, बट इट विल बी स्मूथर पाथ, नॉट दैट बम्पी एज अनदर डिफरेंट पाथ। तो अप्रोच विल डिसाइड कि कौन सा पाथ हमें लेना चाहिए, विच विल हेल्प अस टू नेविगेट टू द फाइनल डेस्टिनेशन ईजिली। So like coming to the third question, it is critical function. This and first is critical function. The critical function is nothing but differentiation of f of x. लेबनीज लगा के हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हाउ यू अप्लाई लेबनीज। नहीं देखा है तो यू मस्ट गो टू प्रीवियस वीडियोज, उसमें एक लेबनीज का सवाल आया था, वी हैव डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट। तो बस वही लगाना है। एफ डैश एक्स निकाला, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि गिवन ये है वो है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइन। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, उसको जीरो करते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स जीरो होगा, तो बस एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1, इसको फैक्टराइज कर दिया, x माइनस 4, x माइनस 3, 5, यस। तो ये सिंपल था फैक्टराइजेशन। ऑर्डर में लिख रहा हूँ 1 2 3 4। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, तो लोकल मिनिमा कब होगा, ये तो हमारे पास हो गया क्रिटिकल पॉइंट सीपीज क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ मिनिमा कंडीशन क्या होगी कि लाइक जिस पे एफ डस एक्स ग्रेटर देन 0 है वो मिनिमा वाला पॉइंट है, जिस पे एफ डस एक्स लेस देन 0 है वो मैक्सिमा वाला पॉइंट है। बस अब इसी को अपन देखेंगे।
ठीक है, तो अब देखते हैं f dash x, find the critical points of this. Okay, now what we can do here, find the point at which local minima occur, which सही तो है ना, f dash x Leibniz से. ओके, देन एफ ऑफ वन हमारे पास टी स्क्वायर, ये ठीक है. ठीक है, ना हमें ग्राफ भी बनाना है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमम पॉइंट एट विच लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम. ओके, सो नाउ व्हाट विल बी डूइंग हियर, ये हो गया. क्या कर सकते हैं हम, अब क्या करें, दिस इज ओके. नाउ एफ डस निकालना, फाइंड द पॉइंट लोकल मिनिमा आकर, तो लोकल मिनिमा क्या कब होगा, ये हमने देख लिया है. ओके, एफ डबल डैश निकालते हैं. पॉइंट ऑफ, ठीक है, एफ डबल डैश निकालते हैं. जब एफ डबल डैश निकाला तो इट विल कम आउट टू बी 2x सॉरी मैं ये गड़बड़ कर रहा हूँ. सॉरी, ये डबल डैश होगा, मैं ये कंफ्यूज हो रहा कि वन डैश कैसे लिख दिया मैंने. या ठीक है, एफ डबल डैश, अब एफ डबल डैश निकाला तो इट विल बिकम 2x minus 5 x square minus 5x plus 6 plus x square minus 5x x square, इसको कॉन्स्टेंट रखो, प्लस 4, ये हो जाएगा x square minus 5 x 2x minus 5, 6 तो गया. यस, नाउ f double dash at 1 would become out to be -4 -1, ये 0 हो जाएगा. ये आएगा, ये कुल मिला के निगेटिव आएगा, कुल मिला के ये निगेटिव आएगा क्योंकि ठीक है 1 1 6 3 2 7, ये पॉजिटिव आएगा, कुल मिला के ये निगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा. देयरफॉर 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्स. सिमिलरली एफ डबल डैश 2 निकाला तो देखो ये इसका रूट 3 और 2, तो ये 0 हो जाएगा. इसका दोनों 4 है, ये नेगेटिव, और 4 4 8 8 8 माइनस 10, ये 3 2 5, ठीक है, ये 4 माइनस ये नेगेटिव, और 4 4 8, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव करने लगे. तो देयरफॉर 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. ठीक है, एफ डबल डैश एट 3. तो इस पे देखिए, इसका रूट 3 और 2, तो ये 0,
इसका रूट 3 × 9 = 13, -15, -2, 6, -5, ये नेगेटिव है। तो कुल मिला के 3 इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। Now double does at 4. 4 is what? ये इस पे इसका रूट 4 है और ये गया 0, 4 × 16, 20, 16 से 22 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, तीसरा बता दिया हमने। हाँ, दूसरा तीसरा दोनों हो गया। तो कुल मिला के चौथा पे चलते हैं। Now what we can do here, like find the zeros of function in f of x। तो f of x निकाल लेते हैं। f of x is f of 0 is 0 because अगर x को 0 डाला तो ये कुल मिला के 0, ठीक है, क्योंकि लिमिट इंटीग्रेशन 0 से 0 ही होगा, क्योंकि इनिशियल फाइनल वैल्यू सेम ही है, तो फिर 0 ही हो गया। देन आफ्टर कुछ और देखें तो 1, 2 पे हमने पता चला था कि ये मैक्सिमा मिनिमा कुछ पता चल गया था। कुल मिला के देखते हैं, एफ ऑफ एक्स का निकाल ही लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू t² या t² - 5t, t² - 5t + 4, t² - 5t + 6, इंटीग्रेशन 0 से x dt। इसका करा तो t की पावर 4, t की पावर से t की पावर 4 यहाँ से गया तो t³, यहाँ से गया तो -10t³ और तो नहीं आएगा t³ का टर्म, ठीक है। t² का टर्म आएगा यहाँ से 6, यहाँ से 4, 10 और कहाँ से आएगा, यहाँ से 6 और यहाँ से 4, 10 और तो नहीं आएगा, और इससे आएगा, हाँ इसके भी आएगा 25, 10, 35, ठीक है। नाउ टी का टर्म पे चलते हैं, तो टी का टर्म यहाँ से आएगा, यहाँ से -30, यहाँ से -20, तो -50, तो कुल मिला के +24। आई होप कैलकुलेशन वाइज वी आर करेक्ट। 3/4 3 2 1, ठीक है। 24 एक बार फिर से कर लेते, ठीक है। t⁴, यहाँ से t³, यहाँ से -5t³, यहाँ से -10t³, और तो बस नहीं आएगा। और t³ का टर्म तो यहाँ से 5 -5, यहाँ से ठीक है। t² पे चलते हैं तो -25 और 6, 4, 10, 35, ठीक है। -10 पे देख लेते हैं टी का टर्म, तो टी का टर्म यहाँ से -30, यहाँ से देखो तो -20, -50 और लामा के टी हो गया 24 हो गया, ठीक है। अब 0 से x, t⁵ 5/5, t⁵ 5/, डायरेक्ट x ही पुट कर देते हैं। वी विल नॉट हैव टू राइट एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x। x⁵ 5/5 -10/4, x⁴ 35/3, x³ -25 x², 24 x। ऐसा कुछ आ गया हमारे पास f of x। तो अब कुल मिला के ग्राफ बनाना है, ग्राफ ही बनाना है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब यही है ना कि ग्राफ बना लो, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट पे ये इनफाइनाइट हो जा रहा है, नेगेटिव इनफाइनाइट पे नेगेटिव इनफाइनाइट हो जा रहा है। बट वी हैव टू सी इन बिटवीन 0 से 5 तक, 0 से 0। अब स्टेशनरी पॉइंट्स पता है हमें कि स्टेशनरी पॉइंट्स क्या है।
1 2 3 4, तो इस पे वैल्यू चेक करेंगे। FF1 कितना आता है, FF2 कितना आता है। 1 1/5 TDS काम है ये, -2.5, इससे मैक्सिमम आना है बस, ये तो पता है भाई। 35/3 फ्रैक्शन में लेके चलते हैं। -25 -25 + 24 -1, तो कुल मिला के कुछ पॉजिटिव ही आ रहा होगा। ये बहुत बड़ा टर्म है। हाँ, तो समथिंग पॉजिटिव, एग्जैक्टली पता नहीं मुझे, समथिंग पॉजिटिव। फिर FF2 निकालते हैं, इसमें ये मैक्स आ रहा होगा क्योंकि अब ग्राफ है तो ये ऐसा जा रहा होगा। अब फिर उसके बाद ये मैक्स है तो फिर अब नीचे आएगा। अब कितना नीचे आएगा, अगर ये इस तरह से आ सकता है या फिर इस तरह से जा सकता है, तो वी विल हैव टू चेक कि FF दूसरा वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है, मिनिमा है, वो उस पर कितना आ रहा है। FF2 इज़ बेसिकली मिनिमा, तो FF2 इज़ 32/5, 16 10 60 14, 8 इंटू 35 इंटू 8/3, 496 +4 -4। तो कुल मिला के देखें अपन तो ये 15, ये -4, कुल मिला के देखिए अपन तो बस पॉजिटिव नेगेटिव देखना है एंड वी विल बी डन। तो कुल मिला के ये -15, ये ये इसको बोल देते हैं 6.4, ये 15, ये काफ़ी बड़ा वाला वैल्यू। तो कुल मिला के कुछ पॉजिटिव ही आना है। 80 से ज़्यादा, 80 प्लस से, 80 प्लस है ये 10 80 प्लस है, तो समथिंग पॉजिटिव ही आने वाला है। बट मिनिमम में कुछ समथिंग पॉजिटिव हो, ये बोल देते हैं कि ये है। वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यू कि कहाँ पे आ रहा है। वी विल हैव टू लोकेट एग्जैक्टली की वैल्यू कैलकुलेट करके। अगेन अब यहाँ पे ग्राफ ऊपर आएगा क्योंकि यहाँ से अब अपन में अब मैक्सिमम आना है, तो मैक्सिमम ये मिनिमम होगा, तो मिनिमम तभी ऊपर आएगा जब ये ऊपर जा रहा होगा कुछ। अब FF3 निकालते हैं। FF3 भी कुछ पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि समथिंग पॉजिटिव तब ऊपर जाएगा, समथिंग पॉजिटिव ही आएगा। अब सबसे ज़रूरी बात है कि हमें वो पता लगाना है कि FF4 पे कितना आ रहा है। FF4 ऐसे जा रहा है या FF4 ऊपर से चला जा रहा है, तो वो वाला निकाल रहे हैं, FF4 निकाल रहे हैं। एग्ज़ाम में यू कैन जस्ट शो कि मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये यहाँ पे आ रहा होगा। बस रूट तो नहीं पूछे हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरोज़ पूछे हैं, तो यू कैन जस्ट मेक अ अप्रॉक्सीमेट ग्राफ एंड डू नॉट हैव टू शो एक्सप्लिसिटली कि कहाँ पे क्या वैल्यू है। दिखा भी सकते हैं, बट आई थिंक इट विल बी बेटर कि ग्राफ का एक रफ एस्टिमेट दे दिया कि व्हाट इज़ द वे द ग्राफ इज़ गोइंग। 4 पे डाला, 4 पे डाला, ये 3 था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना। वी हैव टू सी इट 4 पे कहाँ पे जा रहा है, जब इधर पॉजिटिव है नेगेटिव। 4 का 16, 64, 4/5, 64 64 की 64 इंटू 4, 4 24, 256, 256/5। देन आफ्टर 4 का 16 160, तो 160 को कैसे करेंगे। 4 का 16, ये 4 से कट गया, 4 का 8, 4 का 16 64, ये वाला वैल्यू 4 का 16 काफ़ी बड़ी वैल्यू, 64। अब ये कुल मिला के ये भी काफ़ी वेरी वैल्यू। 25 का 100, 25 का 16, 25 इंटू 16, 96। तो वी विल हैव टू वर्क हार्ड हियर कि मतलब ये 50
कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटर हमारे पास एग्ज़ाम में होगा, बट अभी मेरे पास नहीं है। 51.2 मतलब बस देख रहे हैं कि कहाँ पे जा रहा है, बस देख रहे हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। ये -640 में अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूँ, यहाँ पे ठीक था ना। तो 4 की पावर 3 आ जाएगा, 4 चौका 16, 64 40 64 इंटू, ठीक है। तो ये कुल मिला के इसको मैंने बोल दिया कि ये समथिंग अराउंड 12 मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। तो कुल मिला के हो जाएगा 12 48 12 72 76 माइनस 25 150 15 400 चाचा को 16 64, ये ज़्यादा आएगा। 64 इंटू 16 ये ज़्यादा आएगा। अच्छा, 4 की पावर 5 है, तो 64 इंटू 16। इफ़ यू विल डू इट तो कुछ ज़्यादा आएगा, समथिंग कुछ ये 200 आएगा, समथिंग 200 अराउंड। क्योंकि इसको बोला 12 13 25 65 13 16 48 यहाँ अराउंड 200, ये अराउंड 700 900 समथिंग पॉजिटिव आएगा। ये 100 मान लिया, इसे एग्जैक्टली यू कैन फाइंड आउट यूजिंग कैलकुलेटर कि कितना आ रहा है, समथिंग पॉजिटिव आता है ये। तो ये कुछ ऊपर ही है, मतलब डाउन द बिलो द एक्सेस नहीं जा रहा है, तो ये कुछ ऐसा आ गया, फिर ये ऊपर चला गया, इनफाइनाइट जा रहा है। तो देयर इज ओनली वन रूट, therefore only one root between 0 से 5, that is x equals to 0. I hope everything is correct. So I would say कि मतलब ये ग्राफ का हमें नेचर पता चल गया, एंड हमें पूछा नहीं था कि एक्सप्लिसिटली वैल्यू कितनी है। यू कैन शो इट, मतलब अगर कैलकुलेटर होगी तो जल्दी हो जाएगा, तो यू कैन शो इट कि अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, इवन यू विल हैव कैलकुलेटर, तो यू कैन फाइंड आउट टू द डेसिमल पॉइंट ऑल्सो। ये सेम वैल्यू है, रिपीटेड क्वेश्चन है, Lagrange's मल्टीप्लाई। व्हाट वी डू नथिंग बट द ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड कि इसको हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हैं, ऑक्सिलरी लिखेंगे, बस सेम स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, एक्स वाई जेड का टर्म आ जाएगा। नाउ गिवन इक्वेशन जो हमारे पास ये वाला जो दिया था, तो उसमें अपन एक्स वाई की वैल्यू लैम्डा के टर्म में डाल देंगे। यहाँ तो सही है कि लैम्डा भी आ गया। अब पिछले वाले वीडियो में मतलब मैंने कुछ स्टेप्स मतलब मिस किया था। क्यों मिस किया था? लाइक आई विल शो यू कि मतलब मैंने ये मिस क्यों किया था। ये सेम क्वेश्चन था, तो मतलब कहाँ गया वो सवाल? यस, इस वाले में क्या करा, इस वाले में हमने देखा था कि सेम सवाल है, स्टेप सेम फॉलो होगा, Lagrange's ऑक्सिलरी इक्वेशन ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जीरो करने के बाद हमारे पास लैम्डा समथिंग ये आ जाएगा, समथिंग ये आ जाएगा। हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट इज विल कम आउट टू बी लाइक दिस। नाउ मैंने बस क्या किया था कि लाइक इसमें डेल टू एफ बाई डेल आर स्क्वायर, बेसिकली इसमें वेरिएबल्स थे बस ए और आर। तो मतलब मैंने इसको बोल दिया जेड, ये वाला जो फंक्शन था उसको जेड बोल दिया। अब क्या होता है ना कि हमने देखा था कि मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन क्या होता है। मैक्सिमा का कंडीशन क्या होता है कि जेड एक्स जेड वाई माइनस जेड एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड जेड
एक्स एक्स ये भी ग्रेटर देन जीरो, जेड वाई वाई ये भी ग्रेटर देन जीरो। दिस मीन्स कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो मिनिमा होगा। तो हम मैंने सिर्फ ये वाला पॉइंट देखा कि जो आर पे कितना आ रहा है, आर पे पॉजिटिव है तो ये जीरो ही आएगा, बिकॉज ये वाला चूँकि ये कंस्ट्रेंट है, इक्वेशन कंस्ट्रेंट है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिनिमा और मैक्सिमम आना ही आना है। तो एक हमें ये पता चल गया, यहाँ से हमने हिंट लिया कि जीरो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, दैट्स वाई वी कैन से डायरेक्टली दैट कि स्टेशनरी पॉइंट मिनिमा हो जाएगी। बट यहाँ पे चीज़ अलग है, लाइक थिंग इज समवॉट डिफरेंट हियर। यहाँ पे हम 3 वेरिएबल में खेल रहे हैं। we do not have independence to take f of x y as another variable z। अब z भी अब हमारे पास पिक्चर में इन्वॉल्व है, तो we will be doing something similar बोलना शायद सही नहीं होगा। let's see what we do। तो क्या होता है कि लाइक मैं एनालॉजी दिखा रहा हूँ कि सिंस हमें अब हमारे पास लीवरेज नहीं है कि हम z ऑफ x जेड वाई वाई माइनस जेड ऑफ एक्स वाई को हम ऐसा दिखा दें, और चूँकि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 हो गए हैं तो वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अब हमें पता है कि डी एफ पता है हमें, डी एफ इज़ नथिंग बट एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ वाई डी वाई। जो हमने ये वाला टर्म निकाला था ना, बेसिकली हम करते क्या है, मैं थोड़ा पेन चेंज करके लिख रहा हूँ। ये डी एफ क्या होता है, ये डेल इसको एफ एक्स बोल दिया, एफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ वाई डी वाई, ये एफ ऑफ वाई। तो ये डी एफ एफ होता है। अब स्टेशनरी पॉइंट क्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट होता है उसको जीरो कर दिया। एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से अपन स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे। अब वो सेम चीज़ मैंने वही यहाँ पे लिखा है, इसको थोड़ा सा अच्छा सा लिखते हैं, जो कि हमारा कन्वेंशन चला रहा है। नाउ हियर वी विल हैव टू चेक कि डी टू एफ क्या जा रहा है। अगर डी टू एफ लेस देन ज़ीरो है तो वो मैक्स को जाएगा, अगर डी टू एफ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो मिन को जाएगा। तो अब चीज़ें ऐसा डिफरेंट अब ऐसे हमें देखना पड़ेगा कि 3 वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ तो अब क्या करते हैं ना कि मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं। See how I'm doing. It's a very important step. See clearly. So df is nothing but d of x dx f of y dy। अब क्या करा कि d to f करा तो it will become something like this, d of f of x dx f of y d of f of y dy। सेम अब क्या करा कि इसको कांस्टेंट रखा, d of f of x को करा, इसको कांस्टेंट रखा, f of x को बाहर रखा, इसको कर दिया। सिमिलरली इसको कर दिया डिफरेंशिएट, इसको बाहर रखा, प्लस इसको बाहर रखा, इसको कर दिया डिफरेंशिएट। नाउ सिमिलर अब यहाँ पे देखो कि हमने क्या करा कि अगर डी ऑफ एफ है तो पहले एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन है, फिर वाई से पार्शियल डिफरेंशिएशन है डी वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। मैं 3 वेरिएबल नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि अगर 3 वेरिएबल में खेलूंगा तो काफ़ी लंबा टर्म हो जाएगा। आई जस्ट मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड कि क्या होगा फाइनल एक्सप्रेशन। f of x is f of x का dx f of y, और मैं सेम ये वाला स्टेप जो किया ना, ये वाला यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, f of y d f of x sorry आई होप यू गॉट इट। मैंने इस वाले को खोला, एफ ऑफ एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई डी वाई। लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे हुआ, तो आई होप इट मेक्स साउंड टू यू, मेक्स सेंस टू यू। ठीक है, अब आगे वाले पे चलते हैं। सिमिलरली हम लोग इस पे कर देंगे। अब ये वाला जो टर्म होगा इट विल बी नथिंग बट एफ ऑफ एक्स एक्स। तो मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये देखो मैं ये वाला डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो अब ये एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा डी एक्स, एफ ऑफ वाई वाई डी वाई, बाहर मल्टीप्लिकेशन में डी वाई। थोड़ा सा हौच-पौच हो जा रहा है, इसको मैं इधर लिखता हूँ।
एफ ऑफ एक्स डी टू एक्स, ठीक है। अब ये कंटिन्यूटी में चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब फिर सेम अब ये वाला टर्म कर रहे हैं अपन, तो अब क्या करें कि डेल ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, सॉरी फिर एक्स के टर्म में कर दिया, पहले एक्स के टर्म में करेंगे ना, डी एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स डी एक्स डेल एक्स, सॉरी अरे यार क्या लिख रहा हूँ, डेल एफ ऑफ वाई डी वाई, फाइन। अब क्या करा, डी एक्स बाहर डी वाई बाहर था, यहाँ पे एक्स था। आई होप एफ ऑफ वाई डी टू वाई, आई होप इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है तो बहुत सही है। अब बस सिंपल करके लिखना है बस। अब ये देखेंगे कि ये एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली मैं टर्म कोरिलेट कर रहा हूँ कि ये वाला टर्म सी, ये वाला टर्म सी, ये समेशन लिख सकते हैं अपन ऐसे। सिमिलरली ग्रीन वाला टर्म देखो कि ये वाला टर्म, तो इसको लिख सकते हैं प्लस समेशन 2 टाइम्स, दोनों सही। एफ ऑफ एक्स चूँकि डिफरेंशिएबल है तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स एफ ऑफ मैं लिख के दिखा रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। और यहाँ पे देख सकते हैं कि समेशन ऑफ ये भी टर्म, अब समेशन एक्स पे चल रहा है, सॉरी मैं थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं। अब 2 से लिखते हैं, अरे भाई ये वाला टर्म, तो कुल मिला के समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी टू एक्स। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो अब एक्स को पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो कुल मिला के समेशन लगा दिया हमें। तो आई होप कि कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि लाइक सिमिलरली अब इसको अब क्या करूँ कि एक्स पे भी होगा, वाई पे भी होगा, जेड पे होगा। अब 2 चीज़ों में लिखने का फ़ायदा यह था कि मतलब बहुत लंबा नहीं कैलकुलेशन जाएगा। अब चीज़ें आसान हो गई, अब ये जनरलाइज हो गया, किसी भी कितना भी वेरिएबल नंबर टर्म होगा दिस विल होल्ड वैलिड। तो बस अब डी टू एफ दिखा देते हैं। डी टू एफ इज़ नथिंग बट, अब आप देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स कितना था, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर ये वाला मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर वाला टर्म बन जाएगा, यहाँ पे सही है। तो अब एफ ऑफ एक्स कितना था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स ये था, एफ ऑफ एक्स का जब अपन करा तो ये 2 आएगा, एफ ऑफ वाई का जब करा तभी 2 आएगा, 2 आएगा, तो कुल मिलाकर 2 बाहर आ जाएगा एक्स वाई जेड पे। तो समेशन लगा दिया था डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट। नहीं आता तो फिर लिखना, कमेंट में बताऊंगा फिर क्या। अब क्या करा, अब देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई निकालता है कि यू नो एक्स वाई ये ऐसा लिख पा रहे हैं क्योंकि ये एफ जो है वो डेरिवेबल है, कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है इसमें। ठीक है। अब से सिमिलरली अब एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ इसका ये तो 0 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई 0 है, तो अब एक ही टर्म है बेसिकली, हाँ 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, सारे टर्म 0 होंगे क्योंकि मतलब मैं ये इसको वाई से करा तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि वाई का टर्म नहीं है, इसको एक्स से करा तो ये भी 0 का टर्म हो जाएगा, इसको ये इसको जेड था, एफ ऑफ जेड, तो इसको एक्स से करा तो मतलब जो भी ये वाला टर्म है ना एक्स वाई जेड एक्स जेड वो सारे 0 हो जाएंगे, तो इट विल बिकम 0।
ज़ीरो। अब देखते हैं कि अब एफ एक्स तो मतलब अब हमारा पॉइंट मकसद ये है कि मतलब हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं एट स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट इज़ नथिंग बट एक्स वाई जेड माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्टेशनरी पॉइंट में डायरेक्ट लिखता हूँ मैं स्टेशनरी पॉइंट पे वी नो दैट कि एफ ऑफ एक्स जीरो है। स्टेशनरी पॉइंट पे वी नो दैट कि स्टेशनरी पॉइंट पे बेसिकली करते हैं क्या है कि एफ ऑफ एक्स को जीरो करते हैं, तो ये सारा भी टर्म जीरो हो गया और कुल मिला के स्क्वायर है, तो ये सारा टर्म ग्रेटर देन जीरो हुआ। देयरफॉर d2f देयरफॉर द एट स्टेशनरी पॉइंट मिनिमा इज ऑब्टेन्ड। अब मिनिमा का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, मिनिमा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास लैम्डा है, हमारे पास हमारे पास एक्स वाई जेड भी है। बस एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि लाइक हमें यू था, तो अब इसको अपन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो वी कैन गेट इट लाइक मतलब क्या करूँ मैं, एक्स को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करो प्लस वाई को एफ ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करो प्लस जेड को। इससे फ़ायदा क्या होगा, यू विल रियलाइज इट कि कुछ बन जाएगा हमारे पास। इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर और इसको करा तो ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 2u आ जाएगा। तो 2u प्लस लैम्डा 2x लैम्डा 3y प्लस लैम्डा 5z यस इक्वल्स टू 30। मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली लैम्डा 2x लैम्डा 3y लैम्डा 5z। आई थिंक इट वॉज करेक्ट। हाँ 5z, इसकी वैल्यू 30 है, इसकी वैल्यू 30 है। 2y इसकी वैल्यू 30 है। तो कुल मिला के हमारे पास u क्या आ गया, u बेसिकली नथिंग बट -15 लैम्डा बाई बस 15 लैम्डा -15 लैम्डा की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है -30 बाई 19 तो 450 बाई 19। ये चीज़ ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है लाइक मेनी टाइम्स कि हमें निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, तो हम बस एफ ऑफ एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास u आ जाएगा। बेसिकली u इज़ नथिंग बट डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ओरिजिन से मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओरिजिन से बोल दिया, तो ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस का होल स्क्वायर है। तो बस फ़ायदा ये होता है कि हमें एक्सप्लिसिटली फिर से इतना सारा एक्स में डालो फिर वाई में डालो, फिर वो सब करने की ज़रूरत नहीं रहती। आ तो जाएगा वैसे भी यू गेट लैम्डा यू गेट एक्स वाई यू गेट लैम्डा यू गेट एक्स वाई यू गेट एक्स वाई जेड, यू पुट एक्स वाई जेड को यहाँ पे तो यू गेट यू। ठीक है, आई होप समवॉट आई कुड ऐड वैल्यू टू योर नॉलेज। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।